Good morning, students. Today we are going to continue with the same chapter number 10, Organs of Government. In previous video, we discussed about the basic part of this chapter, right? Take an example की organs of the government. What are the organs of the government? The body which functions at different level that are known as organs, right? As in human body we do have different type of parts of the body that works at different level. Same, our government system is a union government, and in government of India that are divided in different parts, like central government, state government, then at the down level different type of parts are there. Okay, so basic three organs of the government are executive, legislature, which is known as parliament also, and the third is judiciary. In this chapter we are going to discuss about the functions of legislature and executive, and then in chapter number 11 we will discuss in detail about the third organ, that is judiciary, right? So government of India consists of three parts: legislature, executive and judiciary. Now different parts or organs have different work. First is the legislature. Legislature consists of two houses. It can be unicameral or bicameral, but our government has accepted bicameral system, right? Unicameral means a government in which only one house is there, right? कोई एक ही हाउस है जहाँ पे सारा वर्क किया जाता है, दैट इज कॉल्ड यूनिकैमरल, राइट? और बाइकैमरल मीन्स द लेजिस्लेचर विच आर हैविंग टू हाउसेस, जैसे इंडिया में है लोकसभा एंड राज्यसभा. इट इज़ ऑल्सो नोन एज लोअर हाउस एंड अपर हाउस. लोकसभा इज नोन एज लोअर हाउस एंड राज्यसभा इज नोन एज अपर हाउस, राइट? सो लेजिस्लेचर का काम है और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ टू मेक लॉज, राइट? लॉज बनाने का काम. वट एवर द बिल कम्स दैट आर डिस्कस्ड ओवर देयर एंड देन फाइनली दैट कम्स इन टू existence and we have to follow the rules. So according to the constitution, all these things are divided in three different organs or in three different divisions, that are executive, legislature and judiciary. So legislature consists of two house, that is called bicameral. In India we have accepted bicameral legislature system, right? So bicameral means two houses. Upper house is known as Rajya Sabha and lower house is known as Lok Sabha, and the function of this house is to make laws or whatever the bills are there that has been discussed over here in parliament, right? So parliament is the first organs of the government. Then next comes executive. Executive consists of president, vice president and all the cabinet ministers, right? President is the first citizen of India. President is known as, उसको बोला जाता है कि वो सबसे पहले फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है, तो प्रेसिडेंट. उसके अलावा उसके नीचे की पोस्ट है वो वाइस प्रेसिडेंट की है, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर्स. और एग्जीक्यूटिव पार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, टू पास द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर जो भी लॉज बनाते हैं उस लॉज को पास करना, उसको वर्कआउट करवाने का काम है वो लेजिस्लेचर का है. और थर्ड, अगर ये काम प्रॉपरली नहीं हो रहा है और कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई सिचुएशंस में प्रॉब्लम्स है, सो दिस पार्ट इज़ डन बाय जुडिशरी, राइट? कि पनिशमेंट देना हो उसको, अगर ये लॉज बनाए गए हैं उस लॉ को प्रॉपरली फॉलो अप नहीं करते, देन देयर वर्क इज़ टू सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एंड द अदर पब्लिक रिलेटेड टू मैटर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, राइट? तो जुडिशरी का पार्ट क्या है कि उनको सॉर्ट आउट करना.
जुडिशरी हम डिटेल में 11 चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। तो जुडिशरी में मेनली इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स, राइट। सबसे पहले एपेक्स कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट जो एवरी स्टेट्स में होती है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, और उसके नीचे जो कोर्ट्स होती है तालुका लेवल पे, और बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस के दैट आर नोन एज सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। बट दिस ऑल द डिटेल्स of these part we will discuss in 11th chapter, right. So legislature consists of 2 houses and its responsibility is to make laws, right. Next है executive. Executive consists of officer types of works and then the main responsibility to pass the laws made by the legislature. legislature ने जो भी laws बनाए हैं उसको follow up करवाने का काम है, right. तो सेंट्रल लेवल पे वी हैव एक्सेप्टेड बाइकैमरल सिस्टम एंड देन नेक्स्ट पार्ट व्हाट वी हैव टू डिस्कस हियर अबाउट द लेजिस्लेटर, दैट इज द फंक्शन, टोटल फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर, राइट. सेम थिंग इज डिटेल्ड हियर. तो Constitution has divided it in 3 parts of the government, that is legislature makes laws, judiciary interprets laws and executive enforces laws. Now legislature detail में, okay. तो legislature is a law making body. The main function of legislature is to make laws, right. It consists of 2 houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. Elects presidents and vice president and can impeach the president or a judge of Supreme Court and High Court. तो legislature के पास बहुत सारे powers है, right. किसी को elect करना है as a president और vice president, for that also 2 houses are required, क्योंकि इसी में से सारा procedure पास होता है. और उसके अलावा अगर किसी को अपनी पोस्ट पे से हटाना है विच इज़ नॉन एज इम्पीचमेंट, तो प्रेसिडेंट का अगर उसकी ड्यूटी परफॉर्मेंस प्रॉपरली नहीं है एंड इफ पीपल वांट टू रिमूव हिम फ्रॉम हिज पोस्ट, हिज और हर पोस्ट, देन फॉर दैट अ प्रोसीजर इज कैरिड आउट विच इज़ नोन एज प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट. सेम सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, राइट, और हाई कोर्ट के जजेस हैं, तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर. दीज प्रोसीजर्स कैन डन ओनली इन लेजिस्लेचर, ओके. सो लेजिस्लेचर इज अ लॉ मेकिंग बॉडी एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा. लोकसभा इज अ लोअर हाउस, इट इज़ नोन एज द हाउस ऑफ पीपल, राइट. उसको हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है. वाई? बिकॉज वी पीपल आर इलेक्टिंग द मेंबर्स इन लोकसभा. लोकसभा में हम लोग ही इलेक्शन से पर्सन्स को चूज़ करते हैं, राइट. और वही पर्सन्स दे कम टू द पोस्ट, राइट, एज अ मिनिस्टर इन अ लोकसभा. देन टोटल मेंबर इन लोकसभा दैट आर 545, राइट. तो इसका एक रूल है कि मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. हम जो इलेक्शन में जिसको भी इलेक्ट करते हैं, वोट देते हैं, दे विल सिलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ लोकसभा. राज्यसभा नहीं, राज्यसभा में इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट है, ओके. तो लोकसभा में डायरेक्टली दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड मेंबर्स नॉट टू एक्सीड अप टू 550. उसका एक रेशियो है कि भाई 550 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए. प्रेजेंट स्ट्रेंथ इज़ 545. तो अभी लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है दैट इज़ 545 है. एंड द वर्क इज़ टू पासेस द बिल्स, मेक्स लॉज, एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर ट्रेजरी. जो भी फाइनेंशियल बॉडीज़ है, फाइनेंस के रिलेटेड मैटर्स है, लॉज बनाने हैं, बिल्स पास करने हैं, दैट ऑल द वर्क इज़ डन हियर इन लोकसभा, right, and control over council of finance minister, control over council of minister. और council of ministers जो portfolios means इलेक्शंस के बाद जो भी मेंबर सिलेक्ट होते हैं
उसमें 2 पार्टीज़ होती है यहाँ पे, आपको पता है राइट, कि एक है जो विनर पार्टी है, मतलब कि जिसकी मेजोरिटी हुई है, और एक मेजोरिटी पार्टी है, और दूसरी पार्टी जो जिसकी मेजोरिटी नहीं हुई है, दैट आर सिटिंग इन द ऑपोजिट साइड, दैट इज़ नोन एज ऑपोजिट पार्टी, राइट। तो जो मेजोरिटी पार्टी है उसमें से एक मेंबर को सिलेक्ट किया जाता है एज ए प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज सिलेक्टेड फ्रॉम लोकसभा, राइट। और उसके बाद जो भी पोर्टफोलियोज है, जो हाउसेज, आई मीन जो वर्क उसको दिया जाता है उसको पोर्टफोलियो बोलते हैं, और दैट आर डिफरेंट हाउसेज और डिफरेंट वर्क इज असाइन टू डिफरेंट मिनिस्टर, दैट इज़ अ टीम वर्क, दैट इज़ कॉल्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट। तो ये इन सारी चीज़ें लोकसभा में होती हैं। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, कि इफ़ यू वांट टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा, विच क्वालिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड to be qualified as a candidate and to be elected as a member of Lok Sabha. The first thing required, that is he or she must be the citizen of India. सबसे पहला वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, मतलब he or she must have a citizenship of India. ऐसा नहीं है कि कोई बाहर रह रहा है फॉरेन कंट्रीज़ में, इंडियन है तो यहाँ पे आके वो अपना इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। नो, ही मस्ट हैव सिटीजनशिप, उसके पास पहले सिटीजनशिप इंडिया का होना चाहिए, राइट। सेकेंड थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड, दैट ही और शी मस्ट हैव द एज अबाउट 25 ईयर्स। 25 ईयर्स से ज़्यादा उनकी एज होनी चाहिए। 20 बिकॉज वी आर गिवन ए राइट टू कास्ट द वोट एट द एज ऑफ 18, राइट। 18 साल में हमें वोट देने का अधिकार मिल जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एडल्ट सफरेज, राइट टू कास्ट अ वोट। तो वोट देने का अधिकार मिल जाता है, बट 18 साल की उम्र में कोई भी लोकसभा में अपना मेंबरशिप नहीं कर सकता। He or she can be moved to the parliament if he wishes, and so for that the criteria which is decided, that is 25 or more, उसकी एज मिनिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट है उसका क्वालिफिकेशन, दैट ही मस्ट नॉट बी हैविंग अनसाउंड माइंड और इंसॉल्वेंट। वो अनसाउंड माइंडेड नहीं, मतलब कि उसका वो दिमाग है वो प्रॉपरली चलना चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई पागल को कहीं से भी उठा के भी आप लोग लोकसभा में एडमिट वो खड़ा हो, इलेक्शन में खड़ा हो सकता, मतलब कि उसका माइंड है वो अनसाउंड नहीं होना चाहिए। और दूसरा इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। इंसॉल्वेंट क्या है? इंसॉल्वेंट मतलब कि कोई भी इंसान है, सपोज़ कि उसके पास लाखों या करोड़ों की प्रॉपर्टी है, उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी बर्बाद कर दी है, उसके पास कुछ भी नहीं रहा है, या उसने बहुत सारे गलत काम किए हैं और उसकी वजह से सारी प्रॉपर्टीज़ चली गई है, मतलब कि लॉज के हिसाब से वो एक प्रॉपर इंसान नहीं है, तो दैट काइंड ऑफ पर्सन इज़ नॉट अलाउड फॉर दैट। सो थर्ड क्वालिफिकेशन है कि ही मस्ट नॉट बी अनसाउंड माइंडेड एंड इंसॉल्वेंट। और उसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया है कि ही और शी मस्ट नॉट बी एन एम्प्लॉयड ऑफ द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट, राइट। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में वो जॉब करने वाला नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट के ही देयर शुड बी अ पीरियड ऑफ 6 months बिटवीन 2 sittings ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज़ अनदर वर्ड, बट ही मस्ट नॉट प्रूवन ए क्रिमिनल, वो क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, राइट। उसका कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए जिसको भी लोकसभा में इलेक्टेड होना है। सो स्पेशली दीज आर द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर टू बी ए मेंबर इन लोकसभा। सबसे पहले कि ही और शी मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंड, ही और शी मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ मिनिमम 25 years। वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, अनसाउंडेड माइंड का नहीं होना चाहिए, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, और उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं, राइट, कि अगर
उसकी क्वालिफ़िकेशन जो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है वो है, देन ही कैन बी ए पार्ट ऑफ लोकसभा, मीन्स वो इलेक्शंस में खड़े रह सकते हैं और जीत भी सकते हैं, राइट। अब उसकी प्रोसेस की बात करें तो देयर शुड बी ए पीरियड ऑफ 6 months बिटवीन 2 sittings ऑफ द पार्लियामेंट में मिनिमम 2 sittings होनी चाहिए और उसके बीच का जो पीरियड है वो 6 month, राइट। जैसा होता है ना, समर सेशन होता है, विंटर सेशन होता है, मॉनसून सेशन होता है, आप लोगों ने न्यूज़ में देखा ही होगा कि अलग अलग सेशंस में पार्लियामेंट अपना वर्क करती है। जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस है, जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो डिस्कस करना, उसके हिसाब से लॉ में चेंजेस करना, अलग अलग बिल पासेस करना, वो सारा काम है पार्लियामेंट में होता रहता है। सो उसके लिए अलग अलग सेशंस में उसका डिविजन्स किया गया है, राइट। देन और नेक्स्ट थिंग कि मैक्सिमम लॉज कैन बी पास ओवर हियर, राइट। सबसे इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं है कि कोई भी लॉ एक ही हाउस में, बट उसका पूरा प्रोसीजर है, जो अमेंडमेंट की प्रोसीजर है वो अलग है। उसमें अलग अलग दोनों में से कोई भी हाउस है वो बिल को पास कर सकता है उसके एक पूरी प्रोसीजर से, पर फाइनेंशियल बिल है वो सिर्फ लोकसभा में ही डिस्कस किया जाता है, राइट। जो बजट आता है ना उसके पहले की मैटर, फाइनेंशियल मैटर का बिल है, फाइनेंशियल बिल कैन ओनली बी डिस्कस्ड हियर इन लोकसभा। बाकी के बिल कोई भी हाउसेस में डिस्कस हो सकता है, पर फाइनेंशियल बिल स्पेशली लोकसभा में ही होता है, बिकॉज दिस इज़ द हाउस ऑफ पीपल, राइट। ये पीपल का हाउस है, पीपल हैव इलेक्टेड all the members of Lok Sabha here, so financial bill is discussed here in Lok Sabha, right। और उसका टेन्यूर मीन्स टाइम पीरियड क्या है, 5 years। आफ्टर एवरी 5 years लोकसभा है वो डिसोल्व हो जाती है अपने आप ही। इलेक्शन कमीशन के हिसाब से इलेक्शन के टाइम पे जब भी इलेक्शन का प्रोसेस शुरू होता है, उसका डेट डिक्लेयर होता है, तो इलेक्शन प्रोसेस जब भी स्टार्ट होता है उससे पहले ये लोकसभा हाउस है वो 5 year के बाद डिसोल्व हो जाता है। ये परमानेंट हाउस नहीं है। 5 years में एक पूरा गवर्नमेंट का सिस्टम चला, उसके बाद वो पूरा डिसोल्व हो जाता है, उसके बाद इलेक्शन होता है, इलेक्शंस में से फिर जो मेंबर्स सिलेक्ट होते हैं वो सारे वापस आते हैं, फिर उसको शपथ ग्रहण करवाया जाता है एंड देन दे विल कम टू द वर्क, राइट। तो ये लोकसभा जो बॉडी है उसमें ये परमानेंट हाउस नहीं है, हालांकि राज्यसभा है वो परमानेंट हाउस है, अंडरस्टूड। सेकेंड है कि क्वारम मीन्स द मेंबर प्रेजेंट इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। क्वारम क्या है कि जो भी हाउस पार्लियामेंट में जो भी मेंबर्स, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ है 545, बट ऐसा हर बार नहीं होता कि सारे के सारे प्रेजेंट हो, राइट। तो सपोज़ कोई भी बिल पास करना है तो उस टाइम में वहाँ पे क्या होना चाहिए कि मिनिमम कितने टोटल मेंबर्स है, सपोज़ कि 300 प्रेजेंट है, तो 300 का एक लिमिट है, तो उसके मिनिमम 1/10 को प्रेजेंट 545 है तो उसमें 1/10 मेंबर्स को प्रेजेंट रहना ही पड़ता है, राइट। और सेकेंड थिंग्स है कि 250 है तो उसमें से प्रेजेंट कितने रहने चाहिए, 25 मिनिमम। तो इट इज़ नोन एज क्वारम, राइट, कि टोटल मेंबर ऑफ द हाउस में से एटलीस्ट 1/10 पीपल शुड बी देयर इन द हाउस, 1/10 पार्ट ऑफ द मेंबर शुड बी देयर इन अ हाउस। अब सेकेंड है राज्यसभा विच इज़ नोन एज अपर हाउस एंड दैट इज़ नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स। दिस हाउस इज़ अ परमानेंट हाउस। ये हाउस परमानेंट हाउस है, ये डिसोल्व नहीं होता कभी भी, क्योंकि इसमें जो सिलेक्शंस होता है मेंबर्स का उसमें से इनका टेन्यूर है 6 years का। 6 years में कोई भी जो भी मेंबर्स है इसके वो 6 years के बाद रिटायर्ड होते हैं, और पूरे नहीं, क्योंकि 1/3 रिटायर्ड होते हैं। टोटल जितने मेंबर्स हैं उसमें से 1/3 है वो 6 year के बाद रिटायर्ड होते हैं, तो उतने ही 1/3 नए चुने जाते हैं। तो उसके जब 6 year कंप्लीट होता है
तो वापस तो एवरी 2 ईयर्स में 1/3 मेंबर्स है उसके वो रिटायरमेंट उसका रिटायरमेंट होता है और उसके बाद अलग से 1/3 सिलेक्ट हो जाए, राइट। तो ये जो मेथड है उसमें पूरा हाउस डिसोल्व नहीं होता, 2/3 तो रहते ही हैं हर बार। एवरी 2 ईयर में 1/3 रिटायर्ड होंगे, उसकी जगह 1/3 नए आ जाएंगे, वापस 1/3 रिटायर होंगे, वहाँ पे वापस नए आ जाएंगे। तो उसी तरह हर 6 साल में 1/3 मेंबर्स हर 6 साल में ये प्रोसेस चलता रहता है, पर पूरा हाउस कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। तो इसलिए इसको परमानेंट हाउस बोला गया है। और इसकी क्राइटेरिया है कि मेंबर्स नॉट टू एक्सीड 250 से ज़्यादा मेंबर्स होने नहीं चाहिए, राइट। 238 मेंबर्स इलेक्टेड बाय नंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पे 238 है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में से सिलेक्ट होते हैं, और स्पेशल 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के प्रेसिडेंट इसमें 12 मेंबर्स को अब वो खुद सिलेक्ट करके यहाँ पे भेजते हैं, राइट। तो 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और 238 है वो अलग अलग स्टेट असेंबली से सिलेक्ट होके आते हैं। एंड चेयरमैन सुपरवाइजर्स द प्रोसीडिंग्स ऑफ द राज्यसभा, और इन सारी चीज़ों का सुपरविज़न करने का काम भी प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट इज़ कनेक्टेड विद ऑल द एग्जीक्यूटिव बॉडी एज वेल एज विद द लेजिस्लेटिव बॉडी। तो लेजिस्लेटिव बॉडी में दोनों हाउस के हेड में भी प्रेसिडेंट को इम्पोर्टेंस दिया गया है, राइट। कभी एमरजेंसी डिक्लेयर हो या कोई भी ऐसी सिचुएशंस हो, देन ही शुड बी देयर। तो प्रेसिडेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर गवर्नमेंट, एंड ही इज़ ऑल्सो द हेड ऑफ लेजिस्लेचर ऑल्सो, ओके। अब नेक्स्ट है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा, क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर फॉर राज्यसभा। वहाँ पे क्या था कि उसकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए थी, मिनिमम 25 ईयर्स। यहाँ पे राज्यसभा में क्या है कि कोई भी मेंबर को कैंडिडेट बनना है, कोई भी कैंडिडेट को राज्यसभा में इंक्लूड होना है, सो ही और शी मस्ट having the age not less than 30, right। मिनिमम उसकी एज लिमिट है वो 30 इयर्स के तो होने ही चाहिए, उससे ज़्यादा हो उससे बड़े हो तो चलेगा, पर 30 से कम एज नहीं चलती। उसके अलावा बाकी के कॉमन फीचर्स है कि ही और शी मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, दैन ही शुड नॉट बी द गवर्नमेंट सर्वेंट। उसके अलावा अनसॉल्वेंट माइंड नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट का सर्वेंट नहीं होना चाहिए। वो सारी क्वालिफ़िकेशंस कॉमन है। एक ही दोनों में डिफरेंस है कि लोकसभा में मिनिमम 25 चाहिए और राज्यसभा में मिनिमम 30 ईयर्स चाहिए, राइट। अब नेक्स्ट है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज़ the main function of the Speaker of the Lok Sabha is to see the proceeding of Lok Sabha get organized in a prescribed form to maintain discipline, order and dignity of the House are the topmost function of Speaker। Speaker का काम क्या है कि जो भी प्रोसीजर्स वहाँ पे चल रही है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चले, राइट। फिर डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, और उसकी जो डिग्निटी है हाउसेस की वो मेंटेन होनी चाहिए, वो उसका मेन फंक्शन है। फिर द मेंबर ऑफ द लोक सभा इलेक्ट देयर स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर फ्रॉम अमंग देयरसेल्व्स। तो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर वो लोकसभा में से ही सिलेक्ट होते हैं, राइट। लोकसभा के जो भी मेंबर्स हैं वो मेंबर्स अपने में से ही किसी दो को स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर सिलेक्ट करते हैं। The Speaker presides over the session of the Lok Sabha and maintain the control of its function। स्पीकर क्या करते हैं, सेशन को प्रिसाइड्स करते हैं और जो फंक्शंस हैं उनको मेंटेन और कंट्रोल करते हैं। एंड दिस इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द स्पीकर। सो द स्पीकर इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ द डिग्निटी ऑफ द हाउस। हाउस की डिग्निटी है उसको प्रोटेक्ट करने का काम स्पीकर का होता है, राइट। एंड स्पीकर कैन बिलोंग्स टू एनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। ऐसा नहीं है कि जो
लीडिंग पार्टी है उसका ही मेंबर हो, बट वो दोनों पार्टी में से किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, राइट। पर आफ्टर बीइंग अपॉइंटेड एज ए स्पीकर ऑफ द लोक सभा, इट इज़ एक्सपेक्टेड द स्पीकर कैरीज आउट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट इन ए फर्म एंड इम्पार्शियल मैनर। सिलेक्ट वो किसी भी ऑपोजिशन में से या लीडिंग या रूलिंग पार्टी में से कर सकते हैं। वो पर सिलेक्शन होने के बाद लोकसभा की स्पीकर का एक ही काम है कि वो जो फंक्शंस करे वो फर्म और इम्पार्शियल हो। मतलब ऐसा नहीं कि वो मेरी पार्टी का, मैं जिस पार्टी से आया हूँ उसी पार्टी को मैं फेवर करता रहूँ, राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए। ही मस्ट बी फर्म। उसको किसी, फिर स्पीकर बनने के बाद उसका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, दोनों को इक्वली मेंटेन करना है, राइट। और by gaining a majority of the member of the Lok Sabha on a resolution to remove the speaker, with these a speaker can remove from his post by giving a 14 days notice period। अगर स्पीकर को अपनी पोस्ट से रिमूव करना है तो उसके लिए उसको 14 दिन पहले की एक नोटिस पीरियड होता है, तो नोटिस देनी होती है कि बिफोर 14 डेज ही शुड गिवन ए नोटिस, और उसके बाद वो उसको अपनी पोस्ट से हटाया जा सकता है, राइट। और दूसरा एक है कि कोई भी स्पीचेस हो, चाहे वो फेवर में हो या क्रिटिसिज्म में हो, वो सारी स्पीचेस लोकसभा में स्पीकर को एड्रेस करके करनी है, राइट। आपने कभी भी देखा होगा पार्लियामेंट का सेशंस, तो देखा होगा कि सबसे पहले मैडम स्पीकर या सर स्पीकर या उसको पहले उनके सामने ही, भले ही आप किसी और मेंबर को सुनाना चाहते हैं, किसी भी पार्टी को क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं, किसी भी वर्क को क्रिटिसाइज़ करना है, बट सबसे पहले आपको उसके स्पीचेस, जो भी स्पीचेस है वो स्पीकर को एड्रेस करके करनी है, राइट। और लैंग्वेजेस कैन बी यूज्ड बोथ, आइदर हिंदी और इंग्लिश, दो लैंग्वेजेस की छूट है यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट में। यू कैन यूज़ इंग्लिश और हिंदी, राइट। और स्पीकर कैन अलाउ द पर्सन टू स्पीक हिज ऑन लैंग्वेज। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि किसी को दोनों लैंग्वेज पे इतनी ग्रिप नहीं होती, दोनों में से एक भी के ऊपर, तो वो अपनी मदर टंग अगर इफ़ ही और शी वांट्स टू यूज़, तो फॉर दैट दे हैव टू टेक ए परमिशन ऑफ द स्पीकर की परमिशन लेनी है। और इफ़ एनी मेंबर ऑफ द लोकसभा रिमेन्स एब्सेंट फॉर continuous period of 60 days without informing the speaker, then his seat is declared as vacant। कोई भी लोकसभा का मेंबर कंटिन्यूअसली 60 डेज तक अगर एब्सेंट रहता है और वो स्पीकर को उसका रीज़न नहीं बताता, तो 60 डेज़ के बाद वो सीट को जो भी उसकी पोजीशन है उसको वैकेंट समझा जाता है, राइट, कि उसकी सीट है वैकेंट है, उसकी जगह पे नया इलेक्ट किया जाता है। तो कंटिन्यूअसली 60 डेज अगर कोई एब्सेंट रहता है, देन ही मस्ट बी दिस सीट विल बी डिक्लेयर्ड एज वैकेंट, उसको वैकेंट सीट डिक्लेयर्ड किया जाता है, राइट। और एक नेक्स्ट टॉपिक है कास्टिंग वोट। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी डिसीजंस, बिल और एक्ट, कोई भी डिसीज़न लिया जाता है, कोई भी प्रोसेस को चलाया जाता है पार्लियामेंट में, और उसमें कभी ओपोजिशन और रूलिंग उसके जो पार्ट होता है उसमें फेवर और अनफेवर में दोनों में अगर 50-50 का रेशियो है, तो स्पीकर हैज़ गिवन ए राइट टू कास्ट ए वोट, दैट इज़ कॉल्ड कास्टिंग ए वोट। तो स्पीकर उस टाइम में अपना एक वोट किसी भी एक पार्टी को दे सकता है। तो क्या होगा कि मेजॉरिटी हो जाएगी, राइट। दोनों तरफ अगर 50-50 है और एक तरफ उन्होंने अपना एक वोट ऐड कर दिया तो 51 हो जाएगा, राइट। तो प्रोसीजर जो बिल की या एक्ट की है उस प्रोसीजर को एक नई आगे वो बढ़ सकता है। सो फॉर दैट दिस प्रोसीजर इज़ नोन एज कास्टिंग वोट, राइट। और दिस ये एक अलग फीचर या एक इसमें ऐड किया गया है विच इज़ नोन एज
कास्टिंग वोट. सो आई होप लेजिस्लेचर पार्ट पूरा आपको समझ में आ गया होगा. अब उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि व्हेन कैन अ बिल बिकम्स एन एक्ट.